بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین نے رشیا پر جوابی حملے شروع کر دیے، پوٹین نے کیا کنفرم، کہا بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یوکرین کے کئی مقامات پر لڑائی، کیو نے کہا باخمت کے قریب پیش قدمی کی ہے۔ ایران ڈرون مینوفیکچرنگ پلانٹ کی تیاری میں رشیا کی مدد کر رہا ہے، امریکہ نے کیا دعویٰ۔ سوڈان میں 24 گھنٹوں کی جنگ بندی شروع، آرمی چیف البرہان نے یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ یہودی بستیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے، کئی زخمی۔ ایمیزون کے جنگل میں 4 بچے 40 دن بعد صحیح سلامت پائے گئے، ہوائی حادثے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ منی پور میں بات چیت کے لیے مرکزی حکومت نے بنائی کمیٹی، نسلی گروپوں کے درمیان صلح کے لیے کام کرے گی۔ شرد پوار نے سپریا سولے اور پرفل پٹیل کو این سی پی ورکنگ پریزیڈنٹس قرار دیا، اجیت پوار نظر انداز۔ برج بھوشن نے نابالغ لڑکی کو شکایت واپس لینے کے لیے مجبور کیا، ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا کا الزام۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سوڈان کی بات کرتے ہیں۔ سوڈان میں 24 گھنٹے کی جنگ بندی پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے، جس میں امریکہ نے بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کی جنگ بندیوں کی خلاف ورزیاں ہوئی تھیں۔ ہفتے کو صبح 6 بجے جنگ بندی پر عمل شروع ہوا، آخری خبریں ملنے تک جنگ بندی برقرار تھی۔ سوڈان میں 15 اپریل سے فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے اس سے پہلے بھی جنگ بندیوں کی خلاف ورزیوں پر بوکھلاہٹ کا اظہار کیا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ٹکی ہیں کہ کیا اس مرتبہ جنگ بندی پر عمل ہوتا ہے۔ لڑائی کی وجہ سے کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ مصالحت کاروں نے وارننگ دی ہے کہ اگر اس مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ اپنی صلح کی کوششیں چھوڑ دیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے جنگ بندی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سوڈان میں آرمی چیف الفتح البرہان کے عہدیداروں نے یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے وولکر پرٹز کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے اور ان پر طرفداری کا الزام لگایا ہے۔ بات یوکرین کی، امریکہ نے الزام لگایا کہ ایران کی حکومت ماسکو کے قریب ایک ڈرون مینوفیکچرنگ پلانٹ کی تیاری میں رشیا کی مدد کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے امریکی انٹیلیجنس عہدیداروں کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پلانٹ اگلے سال کے شروع تک کام کرے گا۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ ایران نے یوکرین میں استعمال کے لیے رشیا کو سینکڑوں ڈرونز دیے ہیں۔ کربی نے کہا کہ رشیا نے حالیہ ہفتوں میں یوکرین کے دارالحکومت کیف پر حملے کرنے اور یوکرینی آبادی کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ایرانی ڈرونز کا استعمال کیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رشیا ایران فوجی پارٹنرشپ دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت نے اس سے پہلے بھی الزام لگایا تھا کہ ایران اور رشیا ماسکو کے قریب ڈرون پلانٹ قائم کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ رشیا اور ایران نے حالیہ برسوں میں اپنے تعلقات مضبوط کیے ہیں۔ رشیا اس بات کو غلط بتاتا ہے کہ وہ یوکرین میں ایرانی ساخت کا ڈرون استعمال کر رہا ہے۔ ایران نے یہ بات مانی ہے کہ اس نے فروری 2022 میں یوکرین جنگ شروع ہونے سے پہلے رشیا کو ڈرونز دیے تھے۔ یوکرین کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے میں ایرانی ساختہ شہید ڈرونز نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پچھلے مہینے یوکرین نے ایران کے خلاف پابندیوں کے ایک پیکیج کو منظوری دی تھی۔ یوکرین کہتا رہا ہے کہ ایران میں بنے ڈرونز کا استعمال یوکرین کے شہروں پر حملوں کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یوکرینی سویلینز ہلاک ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ایرانیوں سے سوال کیا کہ کیا وہ دہشت کے ساتھ ہی کہلوانا پسند کریں گے۔ تہران نے اسے سیاسی بیان قرار دے کر رد کر دیا۔
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के सिपाहियों ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी और यूक्रेनियंस को काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। पुतिन ने सूची शहर में एक आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम साफ तौर पर यह बात कह सकते हैं कि यूक्रेन के जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेनी सिपाहियों ने एक भी इलाके में अपने मकसद हासिल नहीं किए हैं। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के सिपाहियों को भारी नुकसानात हो रहे हैं। मॉस्को ने कहा है कि उसने ज़पोरिज़िया में रशियन डिफेंस को तोड़ने की कोशिशों को नाकाम बना दिया है। यूक्रेन के एक वजीर ने कहा कि ज़पोरिज़िया में हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि बाखमत, लेमन, ओविका, मारिका में सख्त लड़ाई हो रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बाखमत के करीब बास कामयाबियां हासिल की हैं। डोनेट्स्क के इलाके में खतरनाक लड़ाई हो रही है। यूक्रेनी फौज के तर्जुमान ने बताया कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में 1.2 किलोमीटर तक पेशकदमी की है और बाखमत के बाज़ इलाकों पर कब्जा किया है। साहिली शहर उड़ीसा में रशिया की बमबारी से 3 लोग हलाक हो गए हैं। यूक्रेन की वज़ीर दिफा ने कहा कि कई महाजों पर सूरत हाल नाजुक है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सिपाही रशियन हमलों को पसपा कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने यहूदी बस्तियों के फैलाव के खिलाफ एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर हमले किए। मगरबी किनारे के अलग अलग मकामात नाबलस, कलकीलिया, अल खलील या हिब्रोन और दूसरे मकामात पर ये वाक़यात पेश आए। फ़लस्तीनी एहतजाजियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। 1967 के बाद से मगरबी किनारे में इसराइल ने 230 से ज़्यादा यहूदी बस्तियाँ तामीर की हैं, जिनमें 6 लाख से ज़्यादा इसराइली रहते हैं। फ़लस्तीनी रुकन पार्लियामेंट फ़तही क़रावी ने मुतालबा किया है कि उनके बेटे मोमिन को रिहा किया जाए, जिन्हें फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने 30 दिनों से जरीको जेल में कैद रखा है। उन्होंने सवाल किया कि मोमिन को क्यों जरीको की बदनाम ज़माना जेल में रखा गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बाद सिक्योरिटी अहदेदारों ने उन्हें टॉर्चर किया। तुर्की में रॉकेटों की एक फैक्ट्री में धमाकों से कम 5 वर्कर्स हलाक हो गए। तुर्की की वजारत दिफा ने यह बात बताई। ये वाक़या दारुल हुकूमत अनक़रा के करीब मैकेनिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के कंपाउंड में सुबह तकरीबन 8:45 बजे पेश आया। धमाके की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। इलाके में कई एम्बुलेंस गाड़ियों और फायर इंजन्स को भेजा गया है। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी गेट मसले पर उन्हें पार्लियामेंट से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। इस सिलसिले में पार्लियामेंट की एक कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी। इसी मसले पर बोरिस जॉनसन को वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। कभी कभी हकीकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में कहानीकार भी नहीं सोच सकता। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने कहा है कि अमेज़न के जंगल में 4 छोटे बच्चों को 1 महीने से ज़्यादा अरसे बाद जिंदा पाया गया और वो वहाँ पर जंगल के बच्चों की तरह रह रहे थे। सदर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कबायली ख़ानदानों में उन्होंने जो कुछ सीखा था, इस वजह से वो सही सलामत रह सके। वो 40 दिन पहले एक प्लेन क्रैश के बाद लापता हो गए थे। उस हादसे में उनकी मां हलाक हुई थी। सदर ने कहा कि ये चारों बच्चे एक साथ पाए गए। इससे जाहिर होता है कि इस वाक़े को तारीख में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बच्चे जंगल के बच्चों की तरह रह रहे थे और अब वो कोलंबिया के बच्चे हैं। उनकी दादी मारिया फातिमा वेलेंशिया ने कहा कि वो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने उनके ख़ानदान को मिलाया है। इन बच्चों की तस्वीर वायरल हो गई है जिसमें उन्हें रेस्क्यू वर्कर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ देखा जा सकता है। सदर ने कहा कि ये बच्चे बहुत बीमार हो गए हैं, उन्हें अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, उनकी दिमागी हालत का जायज़ा लिया जाएगा। इन बच्चों की उम्र 4 साल, 9 साल, 13 साल है और एक तो दूध पीता बच्चा है। उनकी माँ 2 दूसरे मुसाफिरों के साथ पहली मई को हलाक हुई थी, जिनमें पायलट भी शामिल था। हादसे के बाद बच्चे घने जंगल में गायब हो गए थे। 100 से ज़्यादा स्पेशल फोर्सेस के सिपाही और 70 से ज़्यादा मकामी लोगों की यूनिट ने उनकी सरगर्मियों में, यानी उन्हें बचाने की सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। रोमानिया में हज़ारों टीचर्स ने कम तनख्वाहों के खिलाफ और बेहतर वर्किंग कंडीशंस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। 10,000 से ज़्यादा टीचर्स ने दारुल हुकूमत बुखारेस्ट में सरकारी हेडक्वार्टर के सामने जमा होकर मुजाहरा किया। मई के महीने से इस तरह का एहतजाज किया जा रहा है।
यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि मुल्क में ऐसा कोई न्यूक्लियर मवाद नहीं है जिसका ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान इसराइल की तरफ से दी गई मनगढ़ंत मालूमात पर मबनी करार देकर रद्द कर दिया। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन ने कहा कि वो IAEA के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। इससे पहले एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने भी एक बयान जारी करते हुए इस मामले पर सफाई दी। सीरिया और ईरान ने आपसी समझौतों पर अमलावरी की अहमियत से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने टेलीफोन पर बातचीत की। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और फैसल मिक़दाद ने इस मौके पर मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। मिक़दाद ने ईरानी वज़ीर को अरब मुल्कों के साथ सीरिया के ताल्लुकात में बेहतरी के बारे में बताया। लौटते हैं इंडिया। मरकजी हुकूमत ने मणिपुर में अलग अलग नस्ली ग्रुपों के दरमियान बातचीत में सहूलत पैदा करने के लिए एक अमन कमेटी बनाई है। ये कमेटी रियासती गवर्नर अनुसुया एकी की सदारत में काम करेगी। इस कमेटी में चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, बाज़ रियासती वजीर, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अलग अलग सियासी जमातों के लीडर्स शामिल होंगे। ये कमेटी समाजी हम आहंगी को मजबूत बनाने, समझबूझ को बढ़ावा देने और अलग अलग नस्ली ग्रुपों के दरमियान खुशगवार राब्तों के लिए काम करेगी। साबिक़ सिविल सर्वेंट्स, माहिरीन तालीम, अदीब व शायर, फनकार, समाजी कारकुन और मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों के नुमाइंदे कमेटी में शामिल होंगे। पिछले महीने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर का दौरा करते हुए इस कमेटी को बनाने का ऐलान किया था। मणिपुर में 4 मई को उस वक्त गड़बड़ शुरू हुई थी जब मेटी तबके को रिजर्वेशन देने के खिलाफ कबायली ग्रुपों ने जुलूस निकाला था। उसके बाद से अलग अलग वाक़यात में तकरीबन 100 लोग हलाक हो चुके हैं और हज़ारों बेघर हुए हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत हसास रियासत है। शरद पवार ने सुप्रिया सोले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट करार दे दिया है। शरद पवार ने पार्टी की 25वीं सालगिरह के मौके पर यह ऐलान किया। उन्होंने 1999 में पीए संगमा के साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई थी। अहम एनसीपी लीडर अजित पवार की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया। शरद पवार ने पिछले महीने पार्टी सदारत से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन एनसीपी के एक पैनल ने उनके इस्तीफे को रद्द कर दिया था और उनसे ख्वाहिश की थी कि पार्टी सदर की हैसियत से वो काम करते रहें। अजित पवार ने सुप्रिया सोले और प्रफुल्ल पटेल को मुबारकबाद दी है। सुप्रिया सोले शरद पवार की बेटी हैं। सियासी हलकों में इस बारे में कयास आराइयां की जा रही हैं कि क्या अजित पवार को नजरअंदाज किया गया। ओलंपियन साक्षी मलिक ने कहा है कि नाबालिग लड़की को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इल्ज़ाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम पर सुलह के लिए बहुत दबाव है। साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण अपने लोगों से कॉल करा रहा है और शिकायत करने वालों को धमकियां दे रहा है। मुल्क के टॉप रेसलर्स कई महीनों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि नाबालिग बच्ची के बाप पर दबाव है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और इसी दबाव में उसने शिकायत वापस ली। साक्षी मलिक ने यह भी कहा कि वो पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और तहकीकात पर असर डाल सकता है। वो गवाहों और शिकायत करने वालों को डरा धमका सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता गैर तरफदार छानबीन नहीं हो सकती। पूनिया ने कहा कि महापंचायत में फैसला किया गया है कि 15 जून के बाद आगे की हिकमत अमली क्या होगी, इस बारे में फैसला करेंगे। वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद उन्होंने 15 जून की डेडलाइन मुकर्रर की थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि किसी लीडर को यह ज़ेब नहीं देता कि वो बैरूनी ज़मीन से अपने मुल्क पर तनकीद करे। वो राहुल गांधी के हालिया बयानात पर उन्हें निशाना बना रहे थे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लीडर को ये बात याद रखनी चाहिए कि मुल्क के अवाम उन्हें देख रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि किसी भी वतन परस्त शख्स को इंडिया की सियासत पर इंडिया में ही बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को मशवरा देना चाहते हैं कि वो अपने आबा अजदाद से सबक सीखें। वज़ीर दाखिला गुजरात के पटन ज़िले में एक रैली से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी सवाल पूछने पर जर्नलिस्ट को धमका रही हैं। यह वीडियो अमेठी का है। इस जर्नलिस्ट ने स्मृति ईरानी से महंगाई के बारे में सवाल किया। अब यह वीडियो वायरल हो गया है। स्मृति ईरानी अमेठी हल्के की नुमाइंदगी करती हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
यूक्रेन ने रशिया पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। पुतिन ने किया कंफर्म, कहा भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के कई मकामात पर लड़ाई, कीव ने कहा बाखमत के करीब पेशकदमी की है। ईरान ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तैयारी में रशिया की मदद कर रहा है, अमेरिका ने किया दावा। सूडान में 24 घंटों की जंगबंदी शुरू। आर्मी चीफ अल बुरहान ने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे को नापसंदीदा करार दिया। यहूदी बस्तियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज के हमले, कई जख्मी। अमेज़न के जंगल में 4 बच्चे 40 दिन बाद सही सलामत पाए गए। हवाई हादसे के बाद लापता हो गए थे। मणिपुर में बातचीत के लिए मरकजी हुकूमत ने बनाई कमेटी, नस्ली ग्रुपों के दरमियान सुलह के लिए काम करेगी। शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी वर्किंग प्रेसिडेंट्स करार दिया। अजित पवार नजरअंदाज। ब्रिजभूषण ने नाबालिग लड़की को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया का इल्जाम। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।